May I request one and all to kindly keep standing for the playing of the national anthem. Thank you. As a gesture of warm welcome, we will now have the felicitation of the dignitaries on the dais with a presentation of a calligraphed copy of the Constitution of India and a memento. May I humbly request the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, to kindly present the memento and the calligraphy to the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Dr. Conrad K. Sangma, and also to the Honorable Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Shri Medba Lyngdoh. Thank you, sir. I would also like to request Shri Utpal Kumar Singh, the Secretary General Lok Sabha, to kindly felicitate the Honorable Minister for District Council Affairs, Government of Meghalaya, Shri Lakmen Rimboy. A sincere thank you to the dignitaries for their patience and cooperation. Ladies and gentlemen, today's program is titled Outreach and Familiarization Program for the local bodies of the state of Meghalaya and other northeastern states, being organized by the Parliamentary Training Research and Institute's Lok Sabha Secretariat. This unique initiative, which is the first of its kind, is conceived and initiated by the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, who is gracing the occasion this morning, with a focus to create greater awareness of the procedures and processes followed by the democratic institutions functioning at various levels from the grassroots to the apex. The program is aimed at strengthening the institutions of governance, enhancing participatory democracy across a wide spectrum of democratic institutions at the grassroots level, ranging from the Panchayati Raj to the autonomous councils in the 5th and 6th schedule of the Constitution. For the information of all present in this august gathering and other representatives who are joining in the program through web links, the first series of this initiative was held at Uttarakhand on the 8th of January 2021, and this is the second leg of the series, which is devoted specially not only to Meghalaya but the northeastern states. On that note, I would like to wish all the esteemed dignitaries a very good morning, and to begin the program, may I call upon Shri Lakmen Rimboy, the Honorable Minister for District Council Affairs, Government of Meghalaya, to deliver the welcome address. Sir. A very good morning to each one of you are present here today. Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Conrad K. Sangma, Honorable Speaker of Meghalaya
Legislative Assembly, Medba Lengdor, the Secretary of Lok Sabha, Utpal Kumar Singh, other dignitaries present this morning, and ladies and gentlemen. It is indeed my privilege to welcome all of you this morning to the first of its kind outreach and familiarization program for the Panchayati Raj institution, local bodies in the country. I am grateful to the Parliamentary Research and Training Institute for Democracies, Lok Sabha Secretariat, with the very apt abbreviation, PRIDE for democracy, is our pride, and the Lok Sabha is the visual representation of this democracy. Strong democratic institutions of governance are at the core of and the keys of nation building. Strong democratic institutions of governance do not happen by chance. They are forged through the empowerment that comes from a keen awareness of democratic procedure and processes, and I am grateful to PRIDE for taking this initiative in organizing this program to this end. One of the fundamental aims and objectives of this program is to create a sense of ownership of public assets built through various interventions of the government by way of planned schemes across all sectors. This, I believe, is a primary requisite for strong nations. Plans are only good as their execution, and when well executed, can evolve into symbols of participatory democratic governance themselves. But every symbol of democratic governance needs and its existence. Loss of purpose of existence in this sense is very much more monetary loss. Material loss is a non-material loss, but a loss of purpose, especially as a symbol of what it is stand for, damage the fabric and then the substance of democratic governance and democracy itself. The word democracy, democratic institution, and democratic governance represent ideals which are not tangible and therefore not easily perceived by a common man, whose empowerment is in order to maximize self-governance. This program intends to achieve. We naturally receive and perceive that this is recognized by our sense of sight, hearing, smell, touch, and taste. Public assets have the capacity to immediately connect to two or more of this natural sense simultaneously, and in the process give form and character to the ideals of democracy. How one does describe democratic governance to a child? He could not understand this concept, but point to a school, a playground, and he would readily understand what it is all about and why it exists. There may be a difference between the form of democratic governance and the process, but objective is the same. How this objective is best achieved may continue to be the subject of debate for years to come. In the meantime, there is actual governance. This word of a song by a famous songwriter and singer illustrates this fact beautifully. Quote, life is what happened to you while you are busy making other plans, unquote. And today life has brought us together at this place. It is my hope that the deliberation during the course of the day would culminate into a positive steps forward, though the step may be as small as the seed placed in your batch, aspiring to growth and planted and fruition. I am confident that the contribution by the members of Panchayati Raj institution and local bodies of other northeastern states will prove to be available to us, and equally confident that they too will take back something of value from our own traditional institution. Thank you. Kuble Mithila, Jai Hind. Thank you, sir, for kick-starting the program on a positive note. We have just been joined by another dignitary on the dais, that is Shri Ragneshwar Teli, the Honorable Minister for Food Processing Industries. May I request Shri Utpal Kumar Singh, the Secretary General Lok Sabha, to kindly felicitate the dignitary present.
Thank you, sirs. It is my privilege to invite the Honorable Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Shri Metpa Lyngdoh, to kindly share a few words with the House. Sir. Honorable Speaker of Lok Sabha, Sri Om Birla Ji, Honorable Chief Minister of Meghalaya, Sri Dr. Conrad K. Sangma, Honorable Minister of State, Ministry of Food and Processing Industries, Sri Rameshwar Teli, Honorable Minister of the Council Affairs, Government of Meghalaya, Sri Lakaman Rumboy, Sri Utpal Kumar Singh, Secretary General, Lok Sabha Secretariat, Honorable members of the Legislative Assembly and members of the Autonomous District Councils, ladies and gentlemen, good morning to you all. As part of the Outreach and Familiarization Program for Grassroots Level Institution organized by Parliamentary Research and Training Institute for Democracies, Lok Sabha Secretariat, it is worthy to note that in one of the world's largest democracy, maximizing self-governance is not only critical to empower people, but also taking governance to the doorstep of the last mile of the population. Meghalaya was accepted from the 73rd Constitutional Amendment Act, which mandated the devolution of governance to the Panchayati Raj system. As a state already relies on strong grassroots governance structure performed by traditional institutions, this system has a far longer history and position of legitimacy among the state's people. These institutions in the form of Darbar in Khasi and Jaintia Hills and Nokma in Garo Hills are village-level assemblies around which the life of the community is organized. The state witnesses the presence of a unique alternate system of Panchayati Raj system institution in the form of autonomous district councils, alongside the existence of traditional heads at the village level, which has laid the foundation of a massive community set up of local self-governance in villages. Over time, interventions by the British and Indian states influenced how these traditional institutions operated. They are presently recognized under the law of the autonomous district councils, which defines their roles and functions. Traditional institutions in the scheduled areas have juridical powers, while this is not with the Panchayati Raj institutions. However, traditional institutions are often a consortium, unlike the Panchayati Raj institutions that are mandated to hold periodic elections for their office bearers. As far as constitutional provisions are concerned, however, there is scarcely any contradiction between the intent in the 6th schedule and in the Panchayati Raj institution system. In comparison to formal provisions in the Constitution for relatively modern PRIs with the well-defined structure, traditional institutions have an amorphous appearance. This attribute allows them to permeate into a social fabric, often making them indistinguishable from observed social customs. Often these are quite effective in calculating certain morals and ethics, while keeping incidences in infringement to a minimum and causing speedy conclusion of trials. In Meghalaya, formal government systems, the state legislature and the judiciary, as well as the autonomous district councils, were formed to give greater autonomy to tribal communities and enable them to take care of general affairs and have the power to make laws. But it is the state's village level traditional institutions that administer us at the grassroots level and work directly with communities on day-to-day activities such as settlement of local disputes, management of lands and forests, and provision of basic services. Alongside the existence of ADCs, Meghalaya possesses an innate
strength in the form of massive community set up for local self-governance in the form of traditional institutions. The democratic governance structure finds its essence in every village in the form of Dorbars in Khasi and Jaintia Hills region and institutions of Nakmas in the Garo Hills region. These well-developed traditional institutions of local government exist in the Khasi, Jaintia and Garo Hills even before colonization and are functioning and strong even today. This has effectively laid the foundation for an efficient grassroots governance mechanism. Traditional grassroots institutions are strong authorities in their regions, having governed tribal communities and their lands since ages. People refer to them and the decisions they make. They are community-driven institutions, act as a bridge between the modern state and the tribal communities. They have already been functioning as regulatory bodies to bring about effective governance at the village level and are mainly involved in activities including making laws on land, management of forests, appointment of traditional chiefs and headmen, inheritance of property, marriage, divorce, social customs, administration, justice and making rules, regulating the constitution of village codes and their powers, undertaking development works and regulations on trading. Moreover, it is worthy of mentioning that Meghalaya's strong COVID-19 pandemic response since the beginning of 2020 makes a convincing case on how empowered our local institutions are. Despite the state's limitations in terms of health infrastructure, Meghalaya has managed to record one of the lowest COVID-19 fatality rates in the country thanks to the collective efforts of the state government and the work of the community-driven traditional institutions. The governance initiatives at the grassroots through Community COVID-19 Management Committee, along with the behavioral change management committees, help state agencies to not only track the pandemic situation, but also strictly enforce COVID-19 protocols while sensitizing the masses. Respecting communities is a process that is gradual, but the advantage on the part of Meghalaya as a tribal state is that the strength of traditional institutions and community leadership has already been realized, and they continue to take strides to unleash their potential in various fronts. The autonomous district councils function as parallel entities to legislative assemblies, and they provide excellent leadership among people to the subjects they deal with. In fact, the autonomous district councils ensure that administration and governance are taken to the people at their doorsteps. This striking balance of community participatory approach in Meghalaya in turn leads to creation of effective political leadership from the grassroots. The spirit of community leadership in Meghalaya is already serving as an example for many other states. And with an already existing robust system of grassroots governance mechanism, what is needed now is for the state government and the traditional governance bodies, including the ADCs, the village employment councils, and other local bodies to work in tandem with each other. A decentralized planning at the village level is crucial for participatory development planning and service delivery at the grassroots level. The aim should be harmonization of traditional institutions with the village level institutions working in convergence with the state administration. It is time now to realize the Meghalaya way of inclusivity, empowerment and decentralization participatory approach of local self-governance, those that form the true hallmarks of a democracy. Kublai Mithila, Jai Hind, and God bless. Thank you, sir, for the informative sharing on the local institutions in the state of Meghalaya and the significance in the context of the present time. May I now have the honor of inviting Shri Rameshwar Teli, the Honorable Minister of State
for food processing industries to also share a few words. नमस्कार। आज इस मंच पर उपस्थित हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, मेघालय के सीएम डॉक्टर कर्नाड संगमा जी, मेघालय के विधानसभा के अध्यक्ष मेडपाउ लिंगडो जी, हमारे मेघालय के मंत्री लेकमन रिंगबोई जी, इस प्रोग्राम में उपस्थित हमारे दो सांसद राजकुमार जी, लाल जी और हमारे एक्स रेल मंत्री भारत सरकार के राजन गोहाई जी, और यहाँ उपस्थित लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल हमारे उत्पल कुमार सिंह जी, सभी मंत्रीगण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधिगण। मैं सोचा कि मेरे लोकसभा के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, उनके सामने मैं क्या बोलूं, कुछ तो बोलना होगा, और मैं हिंदी में अपना बात लिख कर लेकर आया हूं, उसी को मैं रखना चाहता हूं। अब्राहम लिंकन ने कहा, लोगों और लोगों के लिए लोकतंत्र लोगों की सरकार है। अगर लोकतंत्र को लोगों के सपनों, आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना है तो लोगों के पास यह तय करने की शक्ति होना चाहिए कि उन्हें किस तरह शासित किया जाना चाहिए, और उन्हें शासन करने का अधिकार उसके पास होना चाहिए। वास्तव में संसदीय लोकतंत्र का सार यह है कि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद रखती है। भारतीय संसद और हमारी विभिन्न जमीन स्तर के संस्थाएं जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद आदि वास्तव में लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों के प्रति हमारा लालसा को दर्शाते हैं। भारतीय संसद जो लोकतंत्र के मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है, हमारे लोकतांत्रिक स्थापना की अमिट पहचान है। भारत की संसद विचारशील बहस, स्वस्थ चर्चा, विचार परामर्श के लिए जानी जाती है, जिनमें गंभीर मुद्दों पर उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। हमारी संविधान के संस्थापकों को इच्छा को ध्यान में रखते हुए विद्वान प्रतिनिधि हमारी इस बात पर जोर देते हैं कि उन मुद्दों और समस्याओं को कैसे सामने लाया जाए और जो लोगों के सामने है और उनका समाधान कैसे हो। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू सत्ता का विकेंद्रीकरण है। शक्ति के विकास के बिना, स्वास्थ्य के विकास के बिना
लाखों लोगों के सपने, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कभी भी महसूस नहीं किया जा सकता है, महसूस नहीं किया जा सकता है। हर गांव में रहने वाले लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रशासन को निर्णय लेने और चलाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। यह जमीन स्तर के संस्थान लोगों को अपने स्थानीय मुद्दों को हल करने का अवसर देते हैं। इस प्रकार पंचायती राज संस्थाएं सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली वाहन बन गई है। तथ्य के रूप में पंचायत राज संस्थान, जिन्हें ग्रामीण विकास का आधार माना जा सकता है, राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन हमारी सरकार ने भी पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने पर अधिक जोर दिया गया है और इनके माध्यम से सरकार सामाजिक समरसता, किसानों के कल्याण, आजीविका का समर्थन और ग्रामीण विकास को बढ़ाना चाहती है। पंचायत राज संस्थान हसीर पर पड़े सेक्टर में नेतृत्व का अवसर प्रदान करते हैं। पंचायत राज संस्थानों ने वास्तव में विशाल राजनीतिक हितों को उत्पन्न किया है। नियमित चुनाव और स्थानीय क्षेत्र के विकास में पंचायत की लगातार बढ़ती भूमिकाओं ने पंचायतों को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मंच के रूप में उभरने में योगदान दिया है, जो एक मजबूत नेतृत्व को जन्म देने की क्षमता रखता है, जो हमारी देश के भविष्य को आकार दे सकता है। वर्ष में भारतीय संसदीय लोकचार आदर्शों और मूल्यों की उच्चता के लिए पूरी दुनिया में प्रशंसनीय है। हम सभी को वह करने की आवश्यकता है जो हम कर सकते हैं, ताकि हमारी संसद और अन्य सभी जमीनी स्तर के संस्थान आने वाले दिनों में अधिक जीवित और मजबूत बन सके। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की वकालत की और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पंचायतों को शक्ति प्रदान करने के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए योजनाओं के प्रभावी बनाने को भी महत्व दिया गया था। इसके अलावा अगर जमीनी स्तर के संस्थानों को ग्रामीण जनता, विशेष रूप से गरीब और दलित के लिए काम करना है, तो उन्हें पानी के लिए, पीने के लिए पानी, स्वच्छता, सड़कों, स्कूल, ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, महिलाओं के कल्याण जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और यह मुख्य उद्देश्य है जिन पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और पंचायत प्रतिनिधियों को इन मुद्दों को हल करने पर जोर देना होगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आज की इस कार्यक्रम द्वारा मेघालय एवं अन्य नॉर्थ ईस्ट के लोकल बॉडीज के जनप्रतिनिधियों लाभ उठा सके और लोकल बॉडीज को मजबूत बनाने में ग्रामीण भूमिका निभाएंगे। मैं माननीय स्पीकर लोकसभा के श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इस तरह के कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। अंत में मैं सभी को अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और पढ़ने में कुछ भूल हो गई, क्षमा चाहता हूं और इतना ही करके अपना बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
Thank you, sir, for further affirming the importance of participatory democracy through focus in the grassroots level of democratic practices and its strengthening, which would further strengthen the country. May I now have the privilege of requesting the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Dr. Conrad K. Sangma, to kindly address this assembly, sir. Chief guest of today's program, the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, respected Honorable Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Shri Metpal Lingdo Ji, the Honorable Minister of State for Ministry of Food Processing and Industries, Shri Rameshwar Teli Ji, Shri Lakshman Rambui Ji, the Honorable Minister for Home Department and District Council Affairs Department, our former Railway Minister, Government of India, Shri Gogoi Ji, our Honorable MPs who are present out here, all the Honorable MLAs who are present out here, all the Honorable MDCs, members of the Panchayat, Shri Utpal Kumar Singh, the Secretary General of the Lok Sabha Secretariat, and all the other officials who are present here from the Lok Sabha Secretariat, Meghalaya government, and from different bodies who are present here today. I first of all would like to take this opportunity to welcome our Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla Ji, to this very, very important, innovative, and one-of-a-kind program that is being organized here in Shillong. सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने ये प्रोग्राम शिलोंग में होस्ट करने के लिए आपने ये डिसीजन लिया। और जैसे आपको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में काफी स्टेटों में पंचायती राज नहीं है, लेकिन हमारे यहां पे जो ग्रासरूट लेवल का डेमोक्रेसी है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फॉर्म में हमारे यहां पे ग्रासरूट का लोकल बॉडीज का डेमोक्रेसी और गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू होता है। सर, मेघालय स्टेट में आपको मालूम है कि हमारे 3 मेजर ट्राइब्स हैं और इन 3 मेजर ट्राइब्स के 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डाला गया था और बाकी बहुत सारे स्टेटों में इसको डाला गया। सर, इसका जो इंपॉर्टेंस यही था कि जो अलग अलग ट्राइब्स नॉर्थ ईस्ट के थे, इन्हें रिकॉग्नाइज करना, इन्हें इंपॉर्टेंस देना, इन्हें हम लोग कैसे आगे जाके बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इन लोग को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इनके ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इस सोच से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के जो फादर्स थे, उन्होंने ये 6 शेड्यूल एरिया हमारे यहां पे दिया। 6 शेड्यूल के बारे में काफी कुछ हमारे ऑनरेबल स्पीकर ने आज कहा है और किस तरह 6 शेड्यूल ने काम किया, पिछले सालों में किस तरह अलग अलग एरियाज में डेवलपमेंट क्यों ना हो, ट्राइबल आइडेंटिटी, ट्राइबल लैंग्वेज, ट्राइबल कल्चर्स, डायलैक्ट्स, ये सबको प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने बहुत काम किया है। सर, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमारे ऑनरेबल स्पीकर साहब ने उसमें डिटेल में कहा, लेकिन मैं 2-3 मुद्दों में आपका जो है ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सर, आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को अगर आप देखें तो काफी लोग हैं जो डिबेट करते हैं और डिबेट यह है कि क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल फेल हो गया
क्या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिस मकसद से और जिस सोच से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ कि नहीं हुआ? और आज लोग मैनेजमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मैनेजमेंट को देखकर कंक्लूजन में आते हैं, सर मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग गलत हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिस मकसद से बनाया गया था, उस मकसद को अचीव किया है। आज ट्राइबल आइडेंटिटी और ट्राइबल कल्चर को डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है। और मेरा यह मानना है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को आगे आने वाले समय में हमें और मजबूत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। मुझे खुशी है कि 6 शेड्यूल अमेंडमेंट जो बिल आया था, उसको बाद में सिलेक्ट कमेटी के थ्रू भेजा गया और अलग अलग उनमें सोच डाले गए। सर, उन चीजों में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सर, अगर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को देखें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में यह है कि उनके पास फंड का एक इश्यू है। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंस कमीशन में अगर आप डिटेल में देखेंगे तो पंचायती राज, म्युनिसिपल बोर्ड, सबके लिए वहां पे फंडिंग का प्रोविजन है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को वो फंड नहीं मिलता फाइनेंस कमीशन के डेवोल्यूशन में। और इसकी वजह से अगर आप देखें, मैं एग्जांपल देना चाहता हूं गारो हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, कि वहां पे आज उनका एक्सपेंडिचर शायद महीने में 10-12 करोड़ का होगा, लेकिन उनका रेवेन्यू 2 करोड़ से कम है। और उनको भारत सरकार की तरफ से, फाइनेंस कमीशन की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। और इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो लगता है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स फेल हो रहे हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियल सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहेगा, तो उनका जिस काम पे वो करना चाहते हैं काम, शायद उसमें पूरा सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सर, ये पहला मेरा एजेंडा, मैं आपका ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहता हूं कि फाइनेंस कमीशन में अमेंडमेंट होके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स इंक्लूजन होना चाहिए। District councils should get funding as part of the Finance Commission's devolution under Article 280. सर, दूसरा, अगर आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में 10th शेड्यूल नहीं है, यानी एंटी डिफेक्शन। क्योंकि एंटी डिफेक्शन नहीं है, उसकी वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत हाई है। और ज्यादातर जब हमारे जो ग्रासरूट के पॉलिटिक्स, आपको मालूम है सर, ग्रासरूट के पॉलिटिक्स में ज्यादा इंस्टेबिलिटी होता है, ज्यादा मूवमेंट होता है। तो यह बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में एंटी डिफेक्शन लॉ को लाना चाहिए। 10th शेड्यूल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, तभी हम लोग एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को साइड में रखकर काम पे ध्यान दे पाएंगे। तो ये दूसरा पार्ट जो है, जो बिल में है सर, और मुझे विश्वास है कि भारत सरकार और आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, तो इस बिल को हम लोग सही तरीके से सारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स का व्यू लेकर हम लोग इसको आगे जाके अमेंड करके डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को और हम लोग मजबूत कर सके। सर, इस बात में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज मेघालय स्टेट की तरफ से हमने खासी लैंग्वेज और गारो लैंग्वेज को हमने 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने का हमने रेजोल्यूशन लिया है असेंबली में। सर, ये मेरा एक और आपसे सजेशन रहेगा कि नॉर्थ ईस्ट के कल्चर का एक सेपरेट चैप्टर होना चाहिए नेशनल सिलेबस में। सर, तीसरा, मैंने इस बारे में सर, मैंने राष्ट्रपति जी से भी बात की है और प्रधानमंत्री जी से भी मैंने बात की है सर। मुझे लगा कि इस फोरम में मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रेसिडेंशियल रिट्रीट, यानी कि जो राष्ट्रपति के लिए एक रिट्रीट होता है, आज वो हैदराबाद में है और शायद शिमला या मसूरी, मुझे याद नहीं है, 2-3 जगहों में प्रेसिडेंट जो है 2 हफ्ते के लिए हैदराबाद जाते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट में भी हमारा एक राष्ट्रपति का प्रेसिडेंशियल रिट्रीट हो, ताकि देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट आकर नॉर्थ ईस्ट में 14 दिन रहे, 2 हफ्ते रहे और नॉर्थ ईस्ट घूमे, मेरे ख्याल से सर इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। और जैसे मैंने कहा, इससे और नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा सर।
तो मेरा सर आपसे आग्रह है कि इस बात को अगर आप अपने लेवल से बढ़ाएं, मुझे विश्वास है कि हम लोग एक प्रेसिडेंशियल रिट्रीट इन द नॉर्थ ईस्ट, कोई भी जगह सर, कोई भी जगह, मैं तो बोलूंगा शिलोंग में क्योंकि शिलोंग मेरा स्टेट है, लेकिन बाकी लोग शायद बोलेंगे अपनी जगह में, लेकिन कोई भी जगह हो, लेकिन सर नॉर्थ ईस्ट में एक जगह में होना चाहिए। सर लास्ट मेरा एक ही पॉइंट है कि जो एडीसीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और स्टेट्स, सर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, कोई भी सिस्टम देखिए तो आप हर सिस्टम में आप कोई भी कहीं भी आप फॉल्ट आप ढूंढ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने जो भी काम या सोच से हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बनाया है, वो ऑब्जेक्टिव हमको आगे रखकर काम करना है। इसमें सर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि कहीं कहीं कुछ कुछ जगहों में एडीसीज और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं कहीं लैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं। सर मेरे ख्याल से ये जो फोरम है, ये सही फोरम है जहां हम लोग इसको डिलिबरेट करें, डिस्कस करें, रिकमेंडेशंस दें कि हम लोग किस तरह आगे जाके हम लोग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मजबूत कर पाएंगे। बहुत साल पहले जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना था तो एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ था। कुछ सालों बाद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल उसको चला नहीं पाया और 1980s में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ने एजुकेशन को स्टेट को हैंडओवर कर दिया। उसमें कोई गलत बात नहीं है, ऐसा होता है, क्योंकि हमको आगे जाते समय देखना होगा कि कहां हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, कहां हम लोग नहीं कर सकते, कहां बदलना पड़ेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर हमारे सामने होना चाहिए। तो मेरी सर आपसे यह भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम लोग इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का फोरम आपके नेतृत्व में हम आगे भी कर पाए, बाकी स्टेटों में कर पाए और इसके रिकमेंडेशंस हम लोग आगे जाके भारत सरकार को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को हम लोग एक ऑफिशियल फॉर्म में दे पाए रिकमेंडेशन, तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर मीटिंग का, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो मेरा रिकमेंडेशन, सजेशन सर यही होगा कि आज हम जो डिस्कशन करें इसे एक रेजोल्यूशन फॉर्म में बनाएं और अलग अलग जो सिग्नेटरीज है उसमें साइन करें और एक डेलीगेशन बनाकर प्रधानमंत्री को मिलकर हमारे रिकमेंडेशन उनको सबमिट करें सर। नहीं तो अगर आज ये प्रोग्राम खत्म होगा, सब अपने घर चले जाएंगे और फिर हम वापस जहां थे वहीं रहेंगे। सो माय रिकमेंडेशन एंड सजेशन वुड बी दैट whatever decisions we take today, we must put it in the form of a resolution. The dignitaries, important dignitaries from different councils, different Panchayati Raj members should sign, and you should form a delegation and meet the Honorable Prime Minister and give him the suggestions about whatever outcomes that have come out here. So friends, this has been a great forum. I'm extremely thrilled and happy that the Honorable Lok Sabha Speaker had decided to come here and host this program in Shillong, and it's the first of its kind ever that has happened where the initiative has been taken from the top level in our democratic system, which is the Honorable Speaker of the Lok Sabha. So therefore, I wish this program the very best. I thank all the delegates who have come from different corners of the Northeast to be out here today. I wish this program a great success, and once again, thank you so much for being here. God bless all of you. Kublai Shibun, Mathela, and Jai Hind. A sincere thank you, sir, for enlightening the House on the relevance of the local bodies of governance in the context of northeastern states being the ADCs, and asserting the need to further strengthen these institutions in the interest of the various tribes of the region for the integration of the nation and furthering the welfare of the northeastern region. Coming to the anticipated part of the program, I take this opportunity with great privilege to invite the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, to deliver the inaugural address this morning. आज के कार्यक्रम में इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर कॉमरेड के संगमा जी,
भारत सरकार ने फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्री रामेश्वर तेली जी, मेघालय विधानसभा के माननीय अध्यक्ष मेटबाल लिंगडोक जी, मेघालय सरकार में गृह मंत्री, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अफेयर्स के मंत्री लक्ष्मण रिमू जी, लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, लोकसभा में हमारे साथी डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार जी, सीलाल रोसंगा जी, भारत सरकार के पूर्व रेल मंत्री राजन गोगोई जी, मेघालय और उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के प्रतिष्ठित सदस्यगण, विधायकगण, देवियों और सज्जनों, पूर्वोत्तर भारत के मेघालय के सुंदरनगर शिलांग में उत्तर पूर्व राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्यगण को आज प्राइड द्वारा आयोजित इस आउटरीच प्रोग्राम में सम्मिलित होकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। आज हमारे यहां इस कार्यक्रम में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्यों के साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लोकल बॉडीज के सदस्य, पंचायत के प्रतिनिधिगण, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नॉर्थ ईस्ट भारत के अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता और आतिथ्य के लिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। मेघालय विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला प्रदेश और फुटबॉल के क्षेत्र में देश भर के खिलाड़ियों को की प्रतिभाओं को तैयार करने वाला प्रदेश है। आज हम यहां पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जमीनी स्तर पर कार्य करने वाली लोकल बॉडी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेही बनाने के लिए चर्चा के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले महीने देहरादून में उत्तराखंड के पंचायत राज प्रतिनिधियों के साथ हमारी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान मैंने उनसे आग्रह किया था कि हमारी संस्थाओं की फंक्शनिंग इस तरह की होना चाहिए ताकि हम कार्यपालिका को ठीक से जवाबदेही बना सकें। क्योंकि अगर कार्यपालिका की जवाबदेही हम निचले स्तर पर सुनिश्चित करेंगे तो हम जनता को अधिक परिणाम दे पाएंगे। साथियों, आज का कार्यक्रम भी पंचायत राज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को सशक्तिकरण करने का है। यह आज सामयिक भी है और आज प्रासंगिक भी है। देश का हर क्षेत्र को अधिकतम विकास के अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए हमारे संविधान में विशेष उपबंध किए हैं। उत्तर पूर्व भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट है, जिसे ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान के मनीषियों ने संविधान की 6ठी अनुसूची के इन राज्यों में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसे प्रावधान किए गए हैं। इनका उद्देश्य
नॉर्थ ईस्ट के जनजाति समुदाय के अधिकारों का संरक्षण, निर्णय प्रक्रिया में उनकी समान भागीदारी और स्थानीय प्रशासन के उनकी परंपराओं के अनुसार काम करने के लिए इनको शामिल किया गया था। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की आज इस क्षेत्र में अहम भूमिका है। उनके सदस्य अपने क्षेत्र के स्ट्रेंथ की पूरी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं और इस स्ट्रेंथ को हम अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस तरीके से वहां की स्थानीय आर्थिक और सामाजिक योजनाओं को बनाने में हमारी सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक्ट ईजी ईस्ट पॉलिसी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत बड़ी संभावनाओं के द्वार खोले हैं। हमें इन संभावनाओं के अवसरों का लाभ उठाना चाहिए ताकि इस पॉलिसी के तहत हम अधिकतम जनता का कल्याण कर सकें। स्थानीय स्वशासन, लोकतंत्र, विकास दोनों का प्रतीक है। ये लोकतंत्र के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक फ्रेमवर्क भी देता है। ये सबसे निचले स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, जिसके माध्यम से नागरिकों को अपने क्षेत्र में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण इसी राज्य में ईस्ट खासी हिल्स के मालिनोंग गांव में, जो भारत का सबसे स्वच्छ गांव है, उसको बनाने में अगर योगदान है तो स्थानीय निकाय का है, आप सबका है। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय निकाय मजबूत हो, सशक्त हो और जवाबदेही हो। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। वे ग्रामीण स्वशासन और ग्राम उद्योग से राष्ट्र उदय में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक ग्राम आत्मनिर्भर बने। आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने इसी दिशा में कि भारत आत्मनिर्भर बने, उसका एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम भी इस तरीके से बनाए गए हैं ताकि देश का हर गांव आत्मनिर्भर बने, देश का हर शहर आत्मनिर्भर बने, ताकि हम आत्मनिर्भर के माध्यम से भारत को सशक्त और मजबूत कर सके। उत्तर पूर्व के गांव को मैंने अभी एक दिन पहले भी देखा, उसके पहले भी मैंने देखा। यहां की हस्तशिला, यहां की वास्तुकला, यहां की अन्य कला के माध्यम से हम सारे क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। हमारी कोशिश हो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, स्थानीय निकाय हो, उनको किस तरीके से हम आत्मनिर्भर बनाने में भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। यहां की हस्तकला, वास्तुकला, यहां की अन्य कला को हम देश और विदेश के अंदर एक नया बाजार दे सकें। आज आवश्यकता इसी बात की है कि नॉर्थ ईस्ट के सारे इलाके को हम, जहां पर प्राकृतिक सौंदर्यीकरण भी है, जहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां की जमीन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन जमीन है, और इसीलिए हम जिसकी कोशिश करते हैं कि फर्टिलाइजर मुक्त जमीन कहीं है तो नॉर्थ ईस्ट इलाके की है। हम इसका किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए भी हमें व्यापक प्रयास करने की आवश्यकता है, ताकि हम हमारे प्रोडक्ट को, हमारे देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उसको निर्यात भी कर सकें। ये शक्ति संपन्न हो सकता है तो उत्तर पूर्वी राज्य के गांव और शहर हो सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट को आज की आवश्यकता के अनुरूप बनाने के लिए हमें नए नवाचारों को करना होगा। इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग करना होगा ताकि हम जनता को जवाबदेही बना सकें। और इसीलिए हमारी कोशिश होना चाहिए, मेरा सुझाव भी है कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत राज को अधिक प्रभावी बनाना है, प्रशासन को जवाबदेही और पारदर्शी बनाना है और जनता के लिए सुलभ बनाना है, तो हमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा ताकि इसके माध्यम से हम करप्शन भी रोक पाएंगे और प्रशासन की जवाबदेही भी तय कर पाएंगे। साथियों, हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग विविधता है, विशिष्टता है, और उसकी विशिष्टता और विविधता को हम किस तरीके से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हमें लोकतंत्र की चर्चा संवाद का अधिकतम उपयोग करना होगा। हम बेहतर तरीके से जानते हैं हमारे क्षेत्र की समस्याओं को और उसकी समाधान को भी। हम अगर लोकतंत्र में संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हम हमारी समस्याओं की भी चर्चा करेंगे और लोकतंत्र के माध्यम से उस समस्याओं का समाधान का रास्ता भी निकाल पाएंगे। आपको ध्यान है कि यहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि लगातार यहां के स्थानीय क्षेत्र के लोगों के विकास की अवधारणा और योजना बनाती है और वो ठीक तरीके से जानती भी है वहां की आवश्यकताएं, उस क्षेत्र का विकास कैसे हो सकता है, इसके लिए भी लगातार वो कोशिश करती रहती है। और इसके लिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर पंचायत राज संस्थाओं में संवाद करें, चर्चा करें और चर्चा संवाद के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। देश में पंचायत राज संस्था हो, इस प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, उन सब में हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना होगा। हम इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे कि हमारे यहां पर हम किस तरीके से बेटर सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और प्रोसीजर को बेहतर डेवलप कर सकते हैं, इसके लिए लगातार हमें संवाद और चर्चा करती रहनी होगी। मैं पूर्व में भी आग्रह किया था कि हमारे गांव की और हमारे शहरों की, हमारे प्रदेशों की अलग अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति है। ये संपूर्ण देश को हम देखते हैं तो हमें लगता है अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग विशिष्टता, अलग अलग सांस्कृतिक विविधता इस देश के अंदर है। लेकिन उसके बाद भी हम किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र की विशिष्टताओं को, विविधताओं को समेटते हुए किस तरीके से अपने क्षेत्र की व्यापक योजना बना सकते हैं। और इसीलिए जब संपूर्ण देश की हम चर्चा करते हैं तो हमारे क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार हम बेहतर मॉडल बनाएं। जब हम बेहतर मॉडल हमारी ग्राम पंचायतों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, हमारे गांव में बनाएंगे तो हमारे बेस्ट मॉडल, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस हम पूरे देश के अंदर वहां की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अपना सकते हैं। और यही एक बेहतर तरीका है। हम इस देश को सशक्त, मजबूत बनाना चाहते हैं, हर गांव के अंदर अच्छे विकास की कल्पना करना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों, अनुभवों को साझा करना चाहिए। आज नॉर्थ ईस्ट के एक गांव में अगर स्वच्छ गांव बनाए तो एक दिशा दे सकता है कि पूरे भारत के अंदर हम हर गांव को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं। इसके लिए वहां की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने और स्थानीय लोगों ने कैसे योजना बनाई, इसका एक मॉडल पूरे देश में जा सकता है। इसी तरीके से हमारा आज का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने अपने क्षेत्र के अंदर, चाहे विकास का हो, चाहे आर्थिक हो, इन सबको बेहतर मॉडल बनाएं। और इसके लिए पूरे देश के पंचायत राज, लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या अलग अलग संस्थाओं का एक साझा नेटवर्क बनाएं और साझा नेटवर्क को एक प्लेटफॉर्म पर डालें कि किस तरीके से उन्होंने अपने गांव के अंदर एक बेहतर आर्थिक मॉडल बनाया, एक बेहतर सामाजिक मॉडल बनाया,
एक बेहतर विकास का मॉडल बनाया, ताकि हम भी इस मॉडल को अपना सके। मुझे याद है कि हर क्षेत्र की अलग अलग भौगोलिक स्थिति होती है, लेकिन हम हमारे क्षेत्र के अंदर उस भौगोलिक स्थिति के अनुसार शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऑर्गेनिक खेती हो, इसके लिए किस तरीके से काम कर सकते हैं ताकि हम संपूर्ण भारत को शिक्षित कर सकें, ऑर्गेनिक खेती की दिशा की ओर ले जा सकें, हम किस तरीके से स्वास्थ्य का नया मॉडल खड़ा कर सकें, क्योंकि आज हमें इस स्वास्थ्य के नए मॉडल को खड़ा करने की आवश्यकता है। कोरोना संकट की इस चुनौती के समय संपूर्ण भारत ने सामूहिकता के संकल्प के साथ किस तरीके से चुनौती को मुकाबला किया, पूरे विश्व ने देखा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए देश की 130 करोड़ जनता का आह्वान किया और 130 करोड़ जनता ने सामूहिकता संकल्प के साथ, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे पंचायत हो, चाहे लोकल बॉडी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, चाहे सिविल सोसाइटी हो, तमाम लोगों ने सामूहिकता के संकल्प के साथ काम किया और इस चुनौती का मुकाबला किया। आज यही सामूहिकता की संकल्प की शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि सारा भारत एक है और हम एक होकर किसी भी चुनौती को मुकाबला कर सकते हैं। साथियों, आज हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत की संसद लोकतंत्र की सबसे सर्वोच्च संस्था है और सर्वोच्च संस्था होने के नाते हम ये गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर लोकतंत्र और प्रजातंत्र के अंदर हम एक रोल मॉडल की तरह हो सकते हैं, हम एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में हो सकते हैं। और इसके लिए जहां हमारी सर्वोच्च संस्था लोकतंत्र की संसद जो जनता के प्रति जवाबदेही भी बने, पारदर्शिता भी बने, हम कार्यपालिका की जवाबदेही भी तय कर सकें, इसके लिए जब तक हम देश भर की चुनी हुई हर संस्थाएं, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि जिन संस्थाओं में आते हैं, उन चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से हम सशक्त लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र करने के लिए क्या हमारी प्रोग्राम होना चाहिए, क्या हमारे सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से हम बेहतर संवाद चर्चा के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, उसके बेहतर विकल्प होने चाहिए। इसीलिए हम देश भर की चुनी संस्थाओं को सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही बनाना चाहते हैं और कुशलता और ईमानदारी के साथ हमारे जनप्रतिनिधि जनता को मध्य में रहकर किस तरीके से इन संस्थाओं को ठीक से चला सकते हैं, इसके लिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुझे आशा है आज हमने नॉर्थ ईस्ट के इस मेघालय राज्य से, जो उत्तर पूर्व भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, जहां की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक सुंदरता, खनिज का प्रचुर भंडार, यहां के परिश्रमी लोग और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के अंदर विश्वास रखने वाली इस क्षेत्र की जनता पूरे देश में संदेश दे सकती है कि किस तरीके से हमने लोकल बॉडी संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया, जनता के प्रति जवाबदेही बनाया और जनता की हर समस्या का समाधान हमने इस लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से निकाला। इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। मुझे आशा है, हमारी जिम्मेदारी है कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था होने के नाते संसद एक मार्गदर्शक भूमिका के रूप में सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को समय समय पर अपनी बेस्ट प्रैक्टिस अपनाने के लिए कार्य योजना बनाती जाए। हमारी प्राइड संस्था इसी तरीके के कार्यक्रम देश भर में आयोजित कर रही है ताकि हम हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकें ताकि देश के लोकतंत्र को और सशक्त बना सके और मजबूत बना सके। इस मौके पर मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। इसी के साथ खुबलई शुभन मिथेन
धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for reaffirming on the objective and the rationale behind this unique, first of its kind program, keeping in mind the development and safeguarding of the diversity of the grassroots level participation in democratic activities in the country. Thank you once again, sir. Hosting this unique event with pride, the Honorable Speaker of the Meghalaya Legislative Assembly, Shri Mitpa Lyngdoh, and the Honorable Chief Minister of Meghalaya, Dr. Conrad K. Sangma, would like to honor the esteemed dignitaries on the dais, the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla, and the Honorable Minister of State for Food Processing Industries, Shri Ramesh Varateli, respectively, with a traditional organically woven silk stole and a hamper of the best organic produce from the hills of Meghalaya. May I request the staff and the officers of the District Council Affairs to kindly come up and help with the felicitation. I beg your pardon. In the meantime, while they are, I think, coming up to the dais, we also have a special request from one of our invitee states, from the All Assam ZP Chairperson, Shri Shiromani Konwar, Kamrup Zilla Parishad, who has requested that he would like to gift the traditional gamusa to all the dignitaries in the dais. May I request the respected chairperson to kindly do the honors. Thank you. May I once again request